ٹھہریے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت اور دوزخ۔ دوستو، آپ میں سے اکثر لوگ ایسے سوچتے ہوں گے کہ کیا ہم جنت یعنی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے یا نہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ ان 7 باتوں کو نہیں جانتے اور ان پر عمل نہیں کرتے تو آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کلام خدا میں پڑھ رہے ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں عمران، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، چینل گاڈ از لو سے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ بائبل میں لکھی ان 7 باتوں کو جانتے ہو اور ان پر عمل کرتے ہو تو ہی آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو۔ دوستو، کئی لوگ جنت اور دوزخ پر یقین رکھتے ہیں اور کئی سارے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد خدا کی بادشاہی ہی میں جائیں گے، کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں، انہوں نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ آپ کا یقین، آپ کی سوچ بالکل سراسر غلط ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے پاک کلام کے ذریعے فرماتے ہیں، ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ یہاں پر ہر ایک انسان گنہگار ہے۔ ہم میں سے کئی مسیحی بہن بھائی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم تو خدا باپ کو جانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی ہستی کو اچھے سے جانتے ہیں، ان پر ہمارا پورا ایمان ہے، تو ہم بھی خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ تو یہ ان کا یقین غلط ہے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان بھی خدا باپ کو جانتا ہے، ان کے پاک کلام کو اچھے سے جانتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو بھی اچھے سے جانتا ہے، لیکن وہ پھر بھی خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہم کو دھیان میں رکھنا ہے کہ صرف خدا باپ کو جان کر، خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو مان کر ہم خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بائبل میں لکھی ان 7 باتوں کو جاننا ہوگا۔ پہلی بات، خدا باپ کے حکموں پر عمل کرنا۔ کئی لوگ خدا باپ کی، خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، خدا سے بہت سی دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کی بادشاہی میں جانے کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ بھلے ہی وہ دل لگا کر بائبل پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، لیکن خدا نے جو ہمیں کلام میں بتایا ہے، جو حکم دیا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خدا کی بادشاہی ایک مقدس جنت ہے، اس میں وہی لوگ جائیں گے جو پاک ہیں اور جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ متی 7 باب اس کی 21ویں آیت سے 27ویں آیت میں خدا کا کلام ہمیں صاف صاف کہتا ہے کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جس طرح آپ خدا پر اور اس کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، بائبل بھی پڑھتے ہو، اسی طرح آپ کو حکموں پر عمل بھی کرنا ہے، تبھی ہم خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں گے۔ آمین۔ دوسری بات ہے گناہ سے دور رہنا۔ گناہ کا مطلب ہے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا۔ دنیا میں کئی سارے گناہ ہیں، ان میں سے اہم گناہ ہے شہوت انگیزی،
किसी को जान से मारना, चोरी करना, किसी पर जुल्म करना और भी कई सारे गुनाह हैं, लेकिन खुदा हमें गुनाह से दूर रहने की तलकीन करता है। यूहन्ना 8 बाब उसकी 34 और 35 आयत में खुदावंद यसु मसीह ने हमसे फरमाया है। यसु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब्बद तक घर में नहीं रहता, बेटा अब्बद तक रहता है। इन आयात में ये साफ लिखा है कि जो लोग गुनहगार हैं और जानबूझकर गुनाह करते हैं वो खुदा की पाक बादशाहत में कभी दाखिल नहीं हो सकते। उनकी बादशाही में ऐसे गुनहगार लोगों की कोई जगह नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हमें गुनाह नहीं करना है, हमें हर सूरत में गुनाह से बचना है। लेकिन अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है, हमें उन गुनाहों का एतराफ़ करना है और उन गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है। अगर हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं और कबूल करते हैं कि हम गुनहगार हैं, तो खुदा बाप हमारे गुनाहों को मुआफ़ ज़रूर करेगा, क्योंकि वो मुआफ़ करने वाला है। मत्ती 18 बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत में पतरस यीशु मसीह से पूछता है कि मुझे बताएं, मैं अपने भाई को क्या 7 बार माफ़ करूं? यीशु मसीह फरमाते हैं 7 दफ़ा नहीं, 7 दफ़ा के 70 बार अपने भाई को माफ़ करो। दोस्तों, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह हमें फरमा रहे हैं 7 दफ़ा के 70 बार अपने भाई को माफ़ करो। दोस्तों सोचो, अगर वो हमें अपने भाई को माफ़ करने की तलकीन कर रहा है 7 दफ़ा के 70 बार, तो हम तो उसके बच्चे हैं, वो हमको माफ़ क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल माफ़ करेगा, अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करके उससे सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगे। तीसरी बात है बुत परस्ती। ये बात दोस्तों खुदा के दिए हुक्मों में से एक हुक्म भी है कि किसी और की इबादत मत करो, किसी देवता की, किसी मूर्ति की इबादत मत करो। पहला करंथियों 6 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बुत परस्ती से दूर रहो। बाइबल मुकद्दस में कई सारी आयत में यह साफ लिखा है कि बुत परस्ती करना जिंदा खुदा के खिलाफ जाना है, और ये बात जानकर भी जो लोग बुत परस्ती करते हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल होने के काबिल नहीं हैं। तो दोस्तों, हमें बुत परस्ती छोड़कर जिंदा खुदा के ऊपर ईमान रखना है, तो हम खुदा की बादशाही में जरूर जाएंगे। चौथी बात है बच्चों की तरह बनना। मत्ती 18 बाब उसकी 3री आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानंद ना बनो, तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। इस आयत में यह साफ लिखा है कि जब तक तुम अपने आप को बदलकर बच्चों की तरह पाक नहीं बनोगे, तब तक तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हमें हमारा मन छोटे बच्चे की तरह पाक करना है। हमारे दिल में कोई भी गुनाह नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा जैसे कोई मुश्किल आने के बाद अपने माँ बाप के पास जाता है, उसी तरह हमें भी कोई मुश्किल और परेशानी आने के बाद खुदा बाप के पास जाना है, ना कि किसी इंसान के पास। तब ही हम खुदा की बादशाही में शामिल हो सकते हैं। 5वीं बात, दौलत का लालच नहीं करना। मत्ती 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत और 24वीं आयत में लिखा है, और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। इन आयात में हमें साफ साफ पता चलता है कि जो लोग दौलत का लालच करते हैं, जो दौलत के पीछे भाग रहे हैं, उनको खुदा की बादशाही में जगह नहीं मिलेगी। यहाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात याद रखिए कि पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के लिए उनके दिल के अंदर जो लालच पैदा होती है वो गुनाह है। इसलिए हमें पैसे के लिए, दौलत के लिए लालची नहीं बनना, तब ही हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो पाएंगे। 6ठी बात है अपने दिल के गरीब होना। दिल के गरीब होने का मतलब है अपने आप की नफी करना, खुद को जीरो कर देना।
मत्ती 5वां बाब और उसकी 3री आयत में खुदा ने हमें फरमाया है कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इस आयत के जरिए खुदावंद यीशु मसीह हमसे फरमाते हैं, जो दिल के गरीब हैं, जिन्होंने दिल से आजिज़ी इख्तियार की हुई है, बस वही खुदा की बादशाही में शामिल होंगे। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह दिल के गरीब हुए, इसलिए तो उन्होंने क्रॉस पर अपनी जान भी दे दी। खुदावंद यीशु खुदा होकर भी दिल के गरीब हुए, तो हम क्या चीज़ हैं। दोस्तों, हमें भी खुदा की बादशाही में जाने के लिए दिल से आजिज़ी इख्तियार करनी ही होगी। हमें दिल का गरीब होना ही पड़ेगा। 7वीं और आखिरी बात है बपतिस्मा लेना। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इस आयत के जरिए खुदावंद यीशु मसीह हमें कहते हैं, जो कोई रूह और पानी से पैदा ना हो, मतलब जब तक कोई बपतिस्मा लेकर अपने गुनाहों को धोकर नया जन्म नहीं लेगा, तब तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस बात को जहन में रखकर हमें बपतिस्मा लेकर अपने आप को पाक करना है। पाक रूह से हमें फिर से पैदा होना है, तभी हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन 7 बातों को जहन में रखकर आपको अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई बरकत से, खुदा बाप के पाक कलाम के वसीला से आप खुदा की बादशाही में ज़रूर शामिल होंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अपने ख़ानदानों में इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए। खुदावंद हम सबको अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम सब खुदा की बादशाही में शरीक हो सकें। आमीन।